Good morning everyone. Regarding the rules for IUPAC nomenclature, now we are going to start with the alicyclic compounds. Basic rules will remain the same, just a bit differences will be there. Starting with the first one, prefix cyclo is used in front of the name. जैसे हम नेम लिखते थे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन. Now that will be in the cycle form, so we will write it as cyclopropane. जैसे हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड में हम 3 कार्बन के कंपाउंड को लिखते हैं प्रोपेन. If we draw it in the cyclic form, then we will write it as cyclopropane. And this is the bond line structure for the same. So if this is drawn, it's obvious that the vertices they are showing carbon and rest of the valencies they are filled by hydrogen. उनकी कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन ही फिल करेगा if nothing else is mentioned. So this is also cyclopropane. This is the bond and structure for same cyclopropane. This is cyclobutane. Cyclobutane. Butane in the cyclic form, 4 vertices are there which are indicating 4 carbon atoms, and the valencies of carbon atoms they are satisfied by hydrogen only because nothing else is mentioned. This was the case when no substituent is attached. जब सिर्फ हमारे पास सिंपल कार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन है, जब कोई substituent अटैच नहीं है. If substituent is attached to it, the name of the substituent is indicated in the front of the name. जैसे this is the 5 कार्बन कंपाउंड 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स 5 वर्टिसेस है. इसका मतलब ये पेंटेन की फॉर्म है. कौन सी है? साइक्लिक फॉर्म है. सो इट इज मिथाइल साइक्लोपेंटेन. मिथाइल साइक्लोपेंटेन. In the same way, instead of methyl, chlorine is here, so it is chlorocyclohexane. Chloro for this Cl, cyclohexane for this. अगर substituent एक से ज़्यादा है, then we have to number the carbon atoms. So 1, 2, 3, 4. अगर हम इधर से count करते हैं 1, 2, 3, 4, then again the substituents will get the same number. Now the same rule, 1, 3 dimethyl cyclobutane. 1, 3 dimethyl cyclobutane. Cyclobutane is this, and first and third position they are having methyl group attached on it. Now coming to this, the cyclic part is having 1, 2, 3, 4, 5 and 6 carbon atoms. Now the substituents are 3, 1, 2 and 3. एक 2 methyl और एक ethyl group है. Now to number it, again we have to number it according to the rule that lowest set of locants. अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, N बाद में आता है. अगर हम उसके अकॉर्डिंग करें कि 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो अकॉर्डिंगली लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स में 1, 3, 3, क्योंकि 3 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, तो 3 + 3 6 और 1 7. लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स इसमें क्या बनेगा? 7. लेकिन अगर हम नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग करें कि यहाँ से नंबर 1 स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, then it is 1, 1, 3. पहले में हमारे पास क्या आया था? 1, 3, 3, और दूसरी बार में क्या आया? 1, 1, 3. तो हमने ये रूल किया था कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट शुड बी प्रेफर्ड. अब फर्स्ट नंबर तो दोनों में सेम था, लेकिन दूसरे नंबर में ये वाला नंबर कम है, सो दिस विल बी प्रेफर्ड. सो द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड. So it is 1 on first position 2 methyl groups are there, and on third position ethyl group is there. But to write the name, again the alphabetical order should be followed. So the name written is 3-ethyl 1,1 dimethyl cyclobutane.
1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मीन्स हमने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स का रूल भी फॉलो किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का रूल भी फॉलो किया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी, ये हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखने के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। सो ई शुड बी कम फर्स्ट देन एम, तो हमने ई को पहले रखा, एम को बाद में रखा, और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट को भी प्रेफरेंस दिया। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते नंबरिंग तो 1 2 3, तो 1 3 3 ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स बन रहा था, और हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये 1 1 3 बना। सो फर्स्ट नंबर इट इज सेम, एंड ऑन कंपेयरिंग दीज टू नंबर 1 इज लोअर, सो दिस way of numbering is to be preferred in such a case. That is what I have told you earlier also, that some basic rules will be the same. Coming to next point, if the ring atoms in the ring, अगर कार्बन एटम्स रिंग में उतने ही हैं जितने साइक्लिक चेन में हैं, then it is named as alkyl substituted cycloalkane. और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग कम है या उससे उसके इक्वल है, एक्सप्लेनिंग इट विद एग्जांपल, सी द एग्जांपल हियर, इन द साइक्लिक पार्ट 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर देयर, एंड इन द एल्काइल रिंग ओनली 1 कार्बन इज देयर, सो इट इज नेम्ड एज मिथाइल साइक्लोएल्केन। मतलब इसे हमने सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे। अगर एल्काइल चेन में कम है तो उस चेन को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, अगर रिंग में कम है तो रिंग सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगी, एंड वील नेम इट अकॉर्डिंगली। अब जैसे इसमें एल्काइल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम थे, साइक्लिक रिंग में ज्यादा थे, तो दिस वाज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड वी हैव नेम्ड इट एज मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसी तरह इसमें 1 2 3 4 carbon atoms in the alkyl chain, but 1 2 3 4 5 and 6 carbon atoms in the ring, so it is acting as a substituent, so it is 2-butyl cyclohexane। साइक्लोहेक्सेन में सेकेंड पोजीशन, ब्यूटेन की सेकेंड पोजीशन पर साइक्लोहेक्सेन इज अटैच्ड। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स इन द चेन एंड 4 कार्बन एटम्स इन द रिंग। अब इसमें चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है और रिंग में कार्बन एटम्स कम है, सो इन दिस केस द नेम विल बी 3 1 2 3 4 5। 3 पे क्या है, साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। नाउ दिस रिंग इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें भी ज्यादा होंगे वो मेन पार्ट बनेगा, पेरेंट पार्ट बनेगा, और जिसमें कार्बन एटम्स कम होंगे दैट विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन द मॉलिक्यूल। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, इफ द साइड चेन कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, अगर साइड चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है, देन ए एलिसाइक्लिक रिंग विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ये कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है साइड चेन में या फंक्शनल ग्रुप है, देन दिस विल बी considered as a parent part and this will act as a substituent. Now in this case the name will be, according to the rule, numbering should be in such a way that it will get least number. Now its name will be 3 cyclopropyl propene, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते तो इसको सेकेंड नंबर मिलता, लेकिन यहाँ से काउंटिंग की तो इसे फर्स्ट नंबर मिला, एंड वी know that in case if multiple bond is there or functional group is there, then counting should be done in such a way that multiple bond or functional group will get the least number. Now here functional group is also there and multiple bond is also there. Side chain में functional group और multiple bond होगा तो ring will act as a substituent.
and functional group and double bond, if it is there, then the numbering is in such a way that functional group will get least number. So 1, 2, 3, 4 should be the order for its counting. Now 4 cyclohexyl but 3-ene 2-one। एक हमारे पास डबल बॉन्ड था, एक हमारे पास कीटोन ग्रुप था। क्योंकि यहाँ वोवल है तो ईन का पीछे वाला ई हट गया। फोर्थ पोजीशन पे कीटोन की, ब्यूट की फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल। 3-ene थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड एंड 2-one सेकंड पोजीशन पर कीटो ग्रुप। नेक्स्ट, इफ मल्टीपल बॉन्ड और सम अदर सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन द रिंग, अगर रिंग में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, देन मल्टीपल बॉन्ड शुड बी गिवन गेट मिनिमम नंबर। जैसे इन दिस एग्जांपल अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें 1 ही नंबर मिथाइल को मिल रहा है और 1 ही नंबर डबल बॉन्ड को मिल रहा है। तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन इस केस में अगर हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसको 1 नंबर मिलता है डबल बॉन्ड को और मिथाइल को 3 नंबर मिलता है। अगर हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर रूल मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट नंबर, so we will start the counting from this side 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Accordingly its name will be methyl cyclopentene, so methyl cyclopentene। और इसमें क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो मिथाइल साइक्लोपेंटीन, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, यहाँ मिथाइल साइक्लोपेंटीन, यहाँ 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर ही डबल बॉन्ड अटैच्ड है तो 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो हियर मिथाइल साइक्लोपेंटीन एंड हियर 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन विल बी द नेम। कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, इफ साइड चेन कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप एंड रिंग कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड। अब क्या हुआ कि फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में है और मल्टीपल बॉन्ड रिंग में है। In that case we know that functional group is always preferred. So जिसमें functional group होगा वो वाला पार्ट preferred होगा और दूसरी चीज substituent बनेगी। क्योंकि अब functional group इसमें present था तो हमने इसे substituent consider किया। Accordingly now the substituent is on this chain, parent chain 3 कार्बन वाली, उसमें ये cyclic part है। So its name will be 1, 2, 3। इस पेरेंट चेन के थर्ड कार्बन पे 3 साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, इनाइल इज फॉर दिस डबल बॉन्ड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन prop is for these 3 carbon atoms and oic acid is for this फंक्शनल ग्रुप। तो जब कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है जब वो चेन में होगा तो चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहे कम भी होंगे, इवन देन इट इज कंसिडर्ड एज अ पेरेंट चेन एंड द साइक्लिक पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इफ रिंग एंड साइड चेन बोथ कंटेन फंक्शनल ग्रुप, अगर दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप हो, यहाँ तो हमने कहा चेन में फंक्शनल ग्रुप है, अगर फंक्शनल ग्रुप इसमें भी हो और इसमें भी हो, इफ बोथ हैव फंक्शनल ग्रुप देन दैट पार्ट विल बी प्रेफर्ड, जिसमें जो पेरेंट जो फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस में, जो हमने प्रेफरेंस सीरीज की थी उसमें जिस फंक्शनल ग्रुप को हमने पहले प्रेफरेंस देनी है, जिस पार्ट में एल्काइल चेन में या रिंग में वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट विल एक्ट एज अ पेरेंट पार्ट एंड द अदर वन विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। लाइक फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में हमारे पास पेरेंट चेन में COOH ग्रुप है और रिंग में OH ग्रुप है और हमने प्रेफरेंस सीरीज में किया था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप शुड बी गिवन द प्रेफरेंस फर्स्ट एंड देन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें होगा दैट पार्ट विल बी द सब्स्टिट्यूएंट एंड COOH जिसमें है दैट पार्ट विल बी द मेन पेरेंट चेन।
इसे हमने क्यों डिफरेंशिएट करना है पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट में, क्योंकि हमने नेम की एंडिंग उसी के साथ करनी है जिसे हम पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। जैसे इसमें हमने क्या देखा कि पेरेंट चेन इज ऑफ 3 कार्बन एटम्स। क्यों? क्योंकि इसमें COOH ग्रुप है, जो कि हमारी प्रेफरेंस में जो हमने प्रेफरेंस सीरीज की थी उसमें COOH वॉज द मोस्ट प्रेफर्ड ग्रुप, कि इसे सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। अकॉर्डिंगली दिस विल बी द पेरेंट चेन। अब इस पेरेंट चेन के 3rd कार्बन पर क्या लगा हुआ है? साइक्लोहेक्साइल पार्ट, और इस साइक्लोहेक्साइल पार्ट के 4th पोजीशन पर क्या लगा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम क्या लिखेंगे? 3rd पोजीशन पे 3 पे क्या लगा है? 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइक एसिड। नेम की एंडिंग उसी के साथ होगी जो हमारा पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप होगा। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट विच विल बी द पेरेंट चेन, विच विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। और इसी तरह अगर रिंग में हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो हम उनकी नंबरिंग प्रेफरेंस सीरीज के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जो हमने फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस की थी उसी के अकॉर्डिंग हम रिंग को नंबर करेंगे, ताकि जिसे हमें प्रेफर करना है वो कार्बन, उस कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए जिस पर प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। So these are all the rules for naming the compound in case of alicyclic compounds. Thank you.